तो आज टुडे हम लोग फ्रिक्शन करेंगे। हमने लास्ट क्लास में भी फ्रिक्शन किया था। फिर कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि थोड़ा उनका स्क्रीन कुछ प्रॉब्लम था, तो थोड़ा कुछ छूट गया है, समझ में नहीं आया है, ऐसा कुछ इशू आया है। सो विल डू वट एवर वी हैव डन यस्टरडे क्लास, similar type of things, almost same thing we'll be doing today also. I think today we are getting some problem regarding the screen is getting blur every time. So I'll try to fix it up. So okay for now. Okay, this today's topic is friction. Already this Newton's law of motion we have covered. We have completed Newton's law of motion. We have seen how the forces are acting on the body and the implication of those forces, the acceleration, the tension in the string, Coulomb problem, each and every type of problem, whatever the domain of the Newton's law of motion is there. However, the frictions also comes under the domain of Newton's law of motion. But for simplicity, we have bifurcated this Newton's law, whatever we have studied till date, that is without the use of friction. Now we'll incorporate one more force that is called the friction force. Now, what is a friction? First of all, whenever you read the topic friction, the first thing that comes in your mind is what constitute a friction. What is a friction? What is that force that we call a friction? फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। आपने कभी रियलाइज किया होगा कि एक किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आप आते हैं इसको पुल पुश करना चाहते हैं, या उधर से आके खींच रहे, पुल कर रहे, एनीथिंग, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स। पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, जो भी है, आप एक फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने में क्या होता है कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, ये हेवी ऑब्जेक्ट अपने जगह से हिलता भी नहीं है। फिर आप फोर्स लगाते हैं और ज्यादा, यू आर इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स ऑन दैट बॉडी, लेकिन फिर भी वो मूव नहीं करता है। आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद आप अपने फ्रेंड को बुलाते हैं, अपने दोस्त को बुलाते हैं और दोनों मिलकर धक्का लगाते हैं। कुछ टाइम के बाद थोड़ा हिलने लगता है, आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स मूविंग। The observation that you'll be having in this type of question is what the friction is. यही friction है। तो friction, whenever we'll talk about friction, two things we have to consider, that either there is a motion between the surfaces, there must be two surfaces, there must be a relative motion between the two surfaces, or there must be a tendency of relative motion. Two things you must realize. One is there is an actual motion between the surfaces, between the surfaces, or there is a tendency for a motion, tendency of a motion होने वाला है, on a verge of motion, tendency, ऐसा मोशन की तरफ टेंडेंसी है। ओके, तो ये दो चीज आप लोग समझे। दिस इज, वन इज एक्चुअल मोशन एंड वन इज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो जब भी ऐसा केस होता है, आवर फ्रिक्शनल फोर्स कंस्टिट्यूट्स, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगता है, फ्रिक्शन फोर्स आता है और हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो जब भी दो बॉडीज के बीच में, दो सर्फेसेस के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है और रिलेटिव मोशन टेंड टू करता है, whenever a relative motion actually happens or there is a tendency of relative motion between a body and the surface, then that very motion or that tendency of motion is being retarded by a force which is called friction. ये एक्चुअल मोशन को भी रिटार्ड करता है, एंड इफ एट ऑल देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ अ मोशन, उसको भी रिटार्ड करता है। तो एक ऐसा फोर्स है जो एक्चुअल मोशन को भी रिटार्ड करता है, और अगर मोशन होने के पहले की जो टेंडेंसी है उसको भी रिटार्ड करता है। ऐसे फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। रिमेंबर वन थिंग, देयर इज अ कॉन्टैक्ट सरफेस, then only the friction will act. So friction is basically a contact force. The earlier contact force what we have studied is the normal reaction, and this is also a contact force. The difference is that the normal reaction acts perpendicular to the surface, and friction force, since it retard the very motion of the body, it obstructs the very motion of the body. So it is always directed along the surface, and if the motion is in this direction, movement is in this direction, or applied force is in this direction, then the friction will act on this body, friction will act in the opposite direction to the motion. So friction opposes the motion, its direction is opposite
to the motion if motion is actually happening, or its direction is opposite to the डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन की टेंडेंसी जिस डायरेक्शन में होगी, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दिस टेंडेंसी ऑफ मोशन इज वेरी मच क्रिटिकल इन ऑर्डर टू डिसाइड वेयर द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन यू हैव टू टेक. बिकॉज इफ अगर बॉडी को इधर खींचा जा रहा है, आप फ्रिक्शन को इधर लेंगे, बॉडी को अगर इधर पुल किया जा रहा है तो फ्रिक्शन को आप उधर लेंगे. तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कौन सा लेना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर सॉल्विंग different class of problem that somebody is asking you find the this maximum and minimum values of the velocity for which the particle, the block is in equilibrium. In that cases where the maximum and minimum values of the velocity is required in order to place, in order to put the block in equilibrium, this direction of friction is very important. Unless you identify the direction of friction, you cannot solve this type of problem. This type of problem will take up in another 2-3 sessions of this class. So डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डिसाइड कौन करता है? टेंडेंसी ऑफ मोशन. तो टेंडेंसी ऑफ मोशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालना है. आपको देखना है कि मोशन की टेंडेंसी किधर है. एक्चुअल मोशन में तो दिक्कत नहीं, आपको पता है एक्चुअल मोशन किधर हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट लेंगे. लेकिन जब बॉडी मूव नहीं कर रहा होता, ऑन अ वर्ज ऑफ मूवमेंट होता है, आपको डिसाइड करना होता है कि बॉडी किधर मूव करना चाहता है, रिलेटिव मोशन किधर हो सकता है, and the friction is to be taken just opposite to that. So you take a dictation, लिख लीजिए इसको अपने नोटबुक में. If we slide or try to slide a body over a surface, if we slide or try to slide a body over a surface, slide a body over a surface, then the motion is restricted by, then the motion is restricted by a bonding between the body and the surface. A motion is restricted by a bonding between the body and the surface. इस दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाता है जो इसके मोशन को, रिलेटिव मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है. देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन, बॉन्डिंग बस आप ये वर्ड यूज कीजिए, केमिस्ट्री का बॉन्डिंग नहीं है. सम सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, एफिनिटी विल डेवलप बिटवीन द these two surfaces, and that affection, that bonding try to restrict the relative movement of the surfaces. That particular thing, that force which try to restrict this motion is called frictional force. Write it. If we slide or try to slide a body over a surface, the motion is restricted by a bonding between the body and the surface. The motion is restricted, motion is restricted, मोशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है बिटवीन बॉडी एंड सरफेस. ये बॉडी है और ये सरफेस है जिस पर रखा हुआ. बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड बाय अ बॉन्डिंग बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस. मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड बाय अ बॉन्डिंग between the body and surface between the body and the surface. This restriction is represented by a single force. This restriction is represented by a single force. This restriction is represented by a single force and is called friction. And is called friction. साउंड आ रहा है ना आप लोग को सबको ठीक से? किसी का डिक्टेशन छूट गया है तो बताओ. क्या? This restriction is represented by a single force and is called friction. By a single force and is called friction. And is called friction. तो ये तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन हो गया. इसमें दो चीज और दिख रहा है. डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन दिख रहा है. डायरेक्शन क्या है? पैरेलल टू द सरफेस. इट्स डायरेक्शन इज, राइट डाउन, इट्स डायरेक्शन means that friction force, the direction of friction force. We are talking about the direction of friction force. Its direction is, its
direction is parallel to the surface and opposing the very motion. Opposing, parallel to the surface, its direction is what? Parallel to the surface and, और क्या करेगा? अपोज करेगा, अपोजिंग द वेरी मोशन, सिर्फ मोशन को अपोज करेगा और इट्स टेंडेंसी, अगर मोशन होने की टेंडेंसी है तो उसको भी अपोज करेगा. दिस इज टी, टेंडेंसी. इट अपोजेस द वेरी मोशन. डायरेक्शन कैसा होगा? सो दैट इट कैन अपोज द वेरी मोशन एंड द टेंडेंसी ऑफ दैट मोशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम बार बार यूज कर रहे हैं कि एक केस है एक्चुअल मोशन का और एक केस है हमारा टेंडेंसी ऑफ मोशन का. तो फ्रिक्शन में भी दो बाइफर्केशन यहाँ पे कर देंगे. एक फ्रिक्शन जब एक्ट कर रहा है व्हेन पार्टिकल इज मूविंग, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन. एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है व्हेन पार्टिकल इज still at rest, a force is applied, particle is still at rest, certain amount of friction is developed between the surface on which the particle is kept and the particle is not moving and a force has been applied, some friction is developed, that friction is called static friction. So write down friction and write two things, static friction and kinetic friction. फ्रिक्शन का दो डिवीजन. फ्रिक्शन इसके दो पार्ट है. एक है हमारा स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन. अदर इज काइनेटिक फ्रिक्शन. Static friction and kinetic friction. I have to write small. Okay. As the name suggests, here the body so far has not moved. Body क्या हुआ अभी तक? Movement नहीं हुआ. और ये क्या? Kinetic. But body is in motion. So the friction which acts on a stationary body is called static friction. Friction that acts on a moving body is called kinetic friction. You write down. यहाँ पे क्या है? Body is still at rest. Body is still at rest. यहाँ पे क्या? Body is moving. Body is what? Moving. My body is in motion. Moving है या body is in, it is in motion. चाहे body move कर रहे हैं, motion में है. ठीक है. ओके, आपने कॉपी किया. थोड़ा बोर्ड छोटा हो जाता है. ओके, यहाँ तक लिख लिया आपने. ठीक है. विल टेक अप द एग्जांपल दैट वी हैव टेकन यस्टरडे. इसको रब कर दूं मैं. ओके, सबसे पहले हम लोग, ठीक है, पहले काइनेटिक फ्रिक्शन को देख लेते हैं. विल कम बैक ऑन द स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं हम लोग. काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? आप क्या कर रहे हो? आप एक एग्जांपल देखो कि आप एक ट्रॉली लेके जा रहे हैं एंड ट्रॉली में व्हील्स नहीं है. रिमेंबर वन थिंग, व्हील्स नहीं. व्हील्स आएगा तो अलग क्लास ऑफ फ्रिक्शन होगा, दैट विल बी ए रोलिंग फ्रिक्शन. हियर आप ट्रॉली एक लेके जा रहे हो. आई विल ड्रॉ ट्रॉली ओवर हियर. ऐसे करके आपने ट्रॉली लेके जा रहे हैं आप. ठीक है, इसमें आपकी बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है. ठीक है. जब ट्रॉली स्टैटिक था, ये स्टैटिक केस था. आपने हिलाना चाहा, इसको मूव करना चाहा, नहीं मूव हुआ. अपने फ्रेंड से मदद मांगा, ताकत लगाया, चलिए मूव कर गया. अब ये मूव कर रहा है तो आप क्या देखते हैं कि आपको मेहनत लग रहा मूव करने में. आप क्या किया? आपका एक दोस्त आया, फ्रेंड आया, उसने 4-5 किताबें हटा दी. 4-5 किताबें हटा दी तो अब आपको क्या लग रहा है कि मूवमेंट इजी हो गया है. आपको क्या लग रहा है कि मूवमेंट इजी हो गया. फिर आपने अपने छोटे भाई को बुलाया, बोले भाई तू आ जा और 2-4 किताब तू भी अपने उठा ले यार, तू भी उठा ले. तो छोटा भाई आ गया, आपके 2-4 किताब और मूव कर दिया और हल्का हो गया. तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि इसका वेट जैसे घट रहा है ना, आपको मूवमेंट में ईज आ रहा है. मतलब जो जो सब्सटेंस, जो क्वांटिटी आपके मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रही थी, रिटार्ड कर रही थी, दैट इज फ्रिक्शन फॉर द सेक. यहाँ पे जो फ्रिक्शन रिटार्ड कर रहा था वो कम हो गया बिकॉज आपको इजी फील हो रहा है. तो जो अपोजिशन था वो घटा हुआ. इजी कब फील होगा? व्हेन द अपोजिशन इज रिड्यूस्ड. तो आपको यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टेड मोशन था उसमें रिडक्शन महसूस हो रहा है.
मतलब फ्रिक्शन इज रिड्यूसिंग। तो फ्रिक्शन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इज अ फंक्शन ऑफ द वेट ऑफ दिस सब्सटेंस। वेट मतलब इसका वेट, दैट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल इज mg, इट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो आप देखते हैं कि आपका जो रिटार्डेशन है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो एक्ट कर रहा है, वो किसका फंक्शन हो गया? वेट ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा वेट होगा, the more the weight, the greater retardation obstacle you will be feeling. That is the force of friction is depending upon normal reaction. इसको लिखिए आप लोग, इसको लिखिए, force of friction is directly proportional to the normal reaction. समझ में आया ये बात आपको? समझ में आया ना? आप ट्रॉली से पुल कर रहे थे या पुश कर रहे थे, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप सर्टेन बुक्स भरा हुआ था, एक के बाद एक आता गया आदमी, किताब निकालता गया, बुक्स लेके गया, तो जैसे ही बुक्स कम होती गई आपको ईज होने लगा, मूवमेंट इजी होने लगा, मतलब जो रिटार्डेशन था वो कम हो गया। तो रिटार्डेशन कब ज्यादा होगा? जब नॉर्मल ज्यादा है। रिटार्डेशन कब कम होगा? जब नॉर्मल कम है, बिकॉज नॉर्मल इज मैनिफेस्टेशन ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। नॉर्मल इज व्हाट? mg। नॉर्मल इज काउंटर बैलेंस बाय, और mg इज काउंटर बैलेंस बाय नॉर्मल। Okay, so this normal is weight of the body. So whatever we say weight of the, either we say weight of the body or we simply say the normal reaction. So F is directly proportional to the normal reaction, or we can say, write F is equals to mu into normal. Since we are dealing a kinetic friction, we put a little small subscript k, k representing the coefficient, represent the kinetic friction. This mu is the proportionality constant. It is called the coefficient of kinetic friction. This constant is called coefficient of kinetic friction. Mu k को क्या बोलते हैं हम लोग? Mu k is called coefficient of kinetic friction. ठीक है? ओके फाइन। इसको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और नॉर्मल तो आपको पता है, आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया आपने, तो नॉर्मल यू कैन कैलकुलेट, वेरी वेल कैलकुलेट, इवन इफ इट इज इंक्लाइन प्लेन, यू कैन कैलकुलेट that part has been done with the Newton's law of motion. In the Newton's law of motion, we have seen how to calculate the normal reaction. Same thing, you have to calculate here the normal reaction multiplied with the mu k, you'll get the coefficient, this force of the friction, that is the kinetic friction force. You can get it. Okay. यहां तक हो गया क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस कर सकते हैं कि जब ये ट्रॉली मूव नहीं किया था, when the trolley has not moved, मोशन में नहीं आया था, आप जो फोर्स लगा रहे थे आपको फोर्स बढ़ाना पड़ रहा था। एक पॉइंट के बाद जब ट्रॉली थोड़ा मूव करने लगता, हल्का हिलने लगता है, वो होता है जब आप मैक्सिमम फोर्स लगा रहे होते हैं। एक बार जब मोशन में आ जाता है तो आप कम फोर्स पे ही उसको मूव करा सकते हैं, आप इसको कम फोर्स पे ही मूव करा सकते हैं। ठीक है? तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स होता है, जो रिटार्डेशन ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस होता है व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, वो कम होता है जब आप मोशन को जस्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं। जब मोशन को रेस्ट से, बॉडी को रेस्ट से जस्ट मोशन दे रहे होते हैं, उस टाइम में जो रिटार्डेशन होता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, वो बहुत हाईएस्ट होता है। सो ये आ जाता है इस कैटेगरी में, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का हाईएस्ट वैल्यू होता है, दैट इज कॉल्ड अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। विल राइट ओवर हियर। ओके, तो ये इन्फेरेंस आपने ड्रॉ कर लिया है। अब इस पे आते हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन पे आते हैं। ये हो गया म्यू के इनटू नॉर्मल, एंड नॉर्मल यू कैन फाइंड आउट म्यू के, एंड दैट इज mg। सपोज m इज द mass of this full block, frictional force is this much. So we'll come back to the static part. लिख लिया आपने? आप अपने दो पास कंप्लीट है? ओके। कल एक एग्जांपल लिए थे हम लोग अलमीरा का। एक अलमीरा है आपके घर में, बड़ा सा, ठीक है? ये अलमीरा है, इसको मूव कराना है आपके घर में, ठीक है? आपने आपने कोशिश किया, अलमीरा एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा है, तो आपने क्या किया? आपने लेबर बुलाया, है ना? आपने लेबर बुलाया, लेबर वन, दिस इज कॉल्ड लेबर। लेबर बुलाया, पहला लेबर बुलाया, उसने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया। एक मिनट, लेबर वन आया, उसने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, अलमीरा पे अप्लाई किया, अलमीरा मूव नहीं किया।
तो उसने सेकंड लेबर को बुलाया, लेबर 2 आया, अब दोनों ने मिलके बोथ टुगेदर अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, 60 इसका 60 इसका, सब लेबर यहाँ पे 60 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ठीक है। 120 न्यूटन का फोर्स लगा, बॉडी मूव नहीं किया, थर्ड लेबर को बुलाया गया, लेबर 1 2 एंड लेबर 3, ये इसने मिला के 180 न्यूटन का फोर्स लगाया। फिर आया आपका लेबर 4, ये 240 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी तक मूव नहीं किया है। लेबर 5 को बुलाया गया, अब और लेबर नहीं है, इसने आके जैसे ही 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया, ये लगा सकता है पूरा 60 न्यूटन का, अभी इसने 10 का ही लगाया है, तो ये टोटल फोर्स कितना हो गया, साथ मिलके 250 न्यूटन। ये बॉडी मूव करने लगा, ये बॉडी क्या हुआ, मूव करने लगा, और ये अब मूव कर सकता है, ठीक है। तो इस पूरे एक्सरसाइज में ये जो हमने किया काम, इससे एक चीज हमको क्लियर होता है कि सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मूव अ बॉडी। किसी बॉडी को मूव कराने के लिए विच इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल, ऑन अ रफ सरफेस, नॉट नेसेसरली हॉरिजॉन्टल, उसको मूव कराने के लिए एक मिनिमम अमाउंट का फोर्स रिक्वायर्ड होता है। उस फोर्स से कम अगर और लगाएंगे हम, इस फोर्स से कम वैल्यू का लगाएंगे, इस मिनिमम से भी कम, तो क्या होता है, बॉडी मूव नहीं करता है तब तक। बट आप एक चीज देखिए, जब पहला लेबर लगाता है इस पे फोर्स 60 न्यूटन का, तो ये बॉडी स्टेशनरी है, बॉडी एट रेस्ट है। After the application of this 60 Newton force, the body is still at rest. बॉडी क्या है, स्टिल एट रेस्ट है। तो न्यूटन आप लॉ याद करें, न्यूटन्स का लॉ, कि अगर बॉडी पे फोर्स लगता है तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, बॉडी मोशन में आता है, ठीक है। बॉडी किस में आता है, मोशन में आता है, वन एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड। लेकिन यहाँ बॉडी मूव नहीं किया है, यहाँ पे बॉडी मूव नहीं किया, since the body has not moved, then what has happened to the 60 Newton force? There must be some retarding force that is counterbalancing this applied force. That is counterbalancing. Counterbalancing in the sense कि अगर उसमें कोई रिटार्डिंग फोर्स डेवलप होगा तो उसका मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन का होगा और डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। तो अगर जब हमने लेबर 1 ने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये मूव नहीं किया, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो होना है। नेट फोर्स शुड बी जीरो, अपने से मूव नहीं कर सकता, ये उसने मूव नहीं किया है, मूव नहीं किया तो इस पे नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स जीरो है। इस बॉडी पे 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी पे ऑलरेडी -60 न्यूटन का फोर्स कोई लगा दिया है, ठीक है, तभी नेट फोर्स जीरो है। तो ये पहला केस हो गया, जब लेबर 1 लगाया 60 न्यूटन का और बॉडी मूव नहीं किया, मूव नहीं किया तो बॉडी पे नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स -60 न्यूटन का लगेगा, ठीक है। दूसरा लेबर जब आपके 120 लगाता है फिर भी मूव नहीं करता है, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब अगेन नेट फोर्स इज जीरो। दिस इज द वैल्यू ऑफ द नेट फोर्स, इन फर्स्ट केस इट इज जीरो। सेकंड केस जब 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तब भी नेट फोर्स जीरो, बिकॉज बॉडी मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक और फोर्स आ गया 120 न्यूटन का। थर्ड लेबर आया, अभी भी नेट फोर्स जीरो है, अभी भी नेट फोर्स जीरो है। एक मिनट, जब थर्ड लेबर आ गया और 180 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तब भी नेट फोर्स जीरो, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा है तो अगेन a negative force of 180 Newton is also somewhere available, okay, which is counterbalancing this force. Labor 4 आया, 240 न्यूटन का फोर्स लगाया, अगेन बॉडी एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो, दैट इज समवेयर -240 न्यूटन फोर्स इज आल्सो अवेलेबल। जब 250 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो ये हिलने लगा, और यहाँ पे भी -250 न्यूटन का फोर्स आ गया। अब क्या हुआ कि ये तो अभी 10 न्यूटन का ही लगाया, फिफ्थ लेबर अभी सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्योंकि अभी सिर्फ 10 न्यूटन का लगाया, हिलने लगा, ये और फोर्स लगाएगा, मान लो और 50 न्यूटन का और लगा दिया इसने, तो टोटल 60 हो गया इसका, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 300 न्यूटन। इसके बाद ये मूव करने लगता है, सर्टेन एक्सेलरेशन, ये फोर्स इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, इसका अपना एक मैक्सिमम वैल्यू है, इसका अपना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये फोर्स को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये फोर्स क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और ये एक मैक्सिमम वैल्यू पे आके कन्वर्ज कर जाता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा फ्रिक्शन का फोर्स।
ये मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वैसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया जहां पर के बॉडी जस्ट ऑन अ वर्ज ऑफ मोशन है, मोशन के वर्ज पे आ चुका है। ये क्लियर है आपको? ये एग्जांपल क्लियर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, ये कल भी हम लोगों ने किया था। आप इसको कॉपी कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज का इन्फ्रेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इसको इसको मैं रब कर दूं, इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या हुआ कि एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है, एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है जब अप्लाइड फोर्स आ रहा है। वेन एवर अप्लाइड फोर्स कम्स, वन अपोजिंग फोर्स इज क्रिएटेड। दिस इज द इन्फरेंस वी आर ड्रॉइंग। इसका वैल्यू क्या है? सेल्फ एडजस्ट हो रहा है। जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन उसका कुछ लिमिट है, सर्टेन लिमिट तक। दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। बिफोर लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिफोर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये वाले पूरे केस में जैसे ही अप्लाइड फोर्स आ रहा है, एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहा है, अपोजिंग फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब दिस फोर्स इज अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसा फोर्स है ये? कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अच्छा, जब फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो बॉडी एट रेस्ट है। जब अप्लाइड फोर्स जीरो है, बॉडी एट रेस्ट है, नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब रिटार्डिंग फोर्स भी क्या होगा? जीरो होगा। तो तीन इन्फ्लुएंस यहां से निकल गया। पहले आप स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन कर लीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? द अपोजिंग फोर्स, static friction. We are writing this for static friction. We are writing this for static friction. Static friction. The opposing force that comes into play when, कब? जब मोशन स्टार्ट हो चुका है या स्टार्ट होने से पहले? बोलिए। हाँ, when the motion is about to start, when the body is on the verge of motion, उसके पहले। ठीक है, ठीक है। The opposing force that comes into play, that comes into play when the motion is about to start. motion मतलब क्या? motion मतलब relative motion. This is a relative motion. Relative motion between a body and a surface. When the relative motion is about to start, that frictional force is called static friction. That frictional force is called static friction. Here, remember one thing: the motion still not started. The motion has yet not started. Motion start नहीं हुआ, so this friction is force is called static friction. You write, so this friction force is called static friction. This friction force is called static friction. Point number one. बोर्ड आपको ब्लर आ रहा है ना? अब ठीक है, देखो। ठीक है, ये क्लीन है। तो पहला पॉइंट क्या देखें हम लोग? व्हेन बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पे है, जब बॉडी रेस्ट में है, नो फोर्स इज अप्लाइड एंड नो फोर्स इज अप्लाइड। जब रेस्ट में है बॉडी और कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, तो रेस्ट में मतलब नेट फोर्स जीरो,
नेट फोर्स जीरो मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया हमने, तो कोई फोर्स डेवलप भी नहीं होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो। स्टैटिक फ्रिक्शन force is 0. Second, when body is still at rest and a force, body is still at rest and a force F, force F न्यूटन का फोर्स हमने यहाँ पे न्यूटन नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। F न्यूटन का फोर्स है, force F is applied, force F is applied। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा? देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज अप्लाइड फोर्स। आपने देखा है अभी थोड़ी देर पहले, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। Okay, its direction is opposite, always remember, the direction is always opposing the relative motion or tendency of relative motion। ठीक है, body is still at rest and a force F is applied, then static friction कितना होगा? Simply applied force। static friction will be simply applied force। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में? व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट, थर्ड इन्फेरेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? क्या था कि जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं, जो रिटार्डेशन का फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स है, वो भी क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स इज अ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? एक सेल्फ एडजस्टिंग हो जाएगा एंड इट विल adjust itself in accordance with the applied force। it will adjust itself in accordance with the, जगह नहीं आप लिख लो, it will with the accordance with the applied force। हो गया।